السلام علیکم 5 نیوز کے ساتھ میں ہوں کریز العین اور میں ہوں محمد حسنین خان۔ صدر آصف علی زرداری اور چینی ہم منصب شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ کے ایوان عظیم میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ شراکت داری کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے موقع پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ ہم پہلے چین کے اتحادی ہیں، پھر کسی اور کے اتحادی ہیں۔ اس موقع پر صدر شی جن پنگ نے پاک چین دوستی کو بے مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت دار ہیں۔ دونوں ممالک نے سی پیک کی تعمیر، مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوطی سے آگے بڑھایا ہے۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ In terms of the ministries being merged, some of the attached departments either being abolished or being privatized, and some of the vacant posts which we've already announced that are being abolished. And it's a real upside with respect to our expenditure in the federal government. And the last thing is around pension reform. As you know, as of July 1 of last year, all new colleagues in the civil bureaucracy are going to be on defined contribution. So our stock is still a real issue, but at least we have stopped the bleeding. Now, while we are dealing with these immediate imperatives, because it's important in terms of managing the recovery and the economic turnaround, I've been saying in very loudly and clearly that in terms of sustainability of Pakistan and our overall economic situation in the country, it will ultimately depend upon two existential issues and how we deal with those. One is population control and population management. Unfortunately, we are still growing at the rate of 2.55%. And then the topic at hand, which is climate change, and how we sort of deal with that, which is indeed the topic of this conference. I do want to start by commending the organizers who have brought a galaxy of practitioners from around the globe to talk about this issue, but not only talk about this issue, because I've always maintained, even on the economy side, that we have known the what and why for the longest time. There's no dearth of policy prescriptions, but ultimately it's about the how and the who. And I sincerely hope that as we go forward, and this two-day conference is going to address some of the operational and the operationalization of the how and who as we go forward. Now, where do we stand today? I was just listening to Justice Mansoor Ali Shah, and I just came in while he was speaking here, and he made some very, very pertinent points. Now, some of the established facts. I'm sure this conference has already attended to that. One of the most vulnerable countries in terms of climate change. Also, while we need to deal with mitigation, the real issue and the bigger issue is adaptation. Now, some of the enabling factors. National Adaptation Plan is in place with the NDCs and everything that a lot of speakers will talk about. The second one is the National Climate Finance Strategy. And I was in Baku with the Minister of Climate Change, where we unveiled this climate finance strategy. And that's where this figure of $348 billion of gap
till 2030 sort of came up. We are also very grateful to V20 and that forum in terms of working on a comprehensive climate prosperity plan, which will be, inshallah, unveiled during April. And the last thing I want to mention is the State Bank of Pakistan to issue green taxonomy guidelines. Now, we should have done that some time back, but there ayed, durust ayed. So I think it's okay. Again, it's in the April timeframe because it's very important. What is green? How do you structure? How do you monitor? How do you finance? It's very important that we have a national green taxonomy framework as we go forward. Now, to the topic at this point in time, and for this session around financing. Now, the way I look at it, a few sources. When we talk about the COPs in COP27, Loss and Damage Fund in Sharm el-Sheikh, and it's good to see some level of operationalization coming through in COP29, with about $720 or $730 million in loss and damage fund at least being pledged. Then the Baku finance goal itself, after long deliberations, about $300 billion of commitment in terms of annual outlays. Although, of course, as we all know, the requirement and the ask was at least 3 to 4 times higher than this commitment. Then we have the Green Climate Funds, and if Acumen is here, I think it was very good to see Acumen Climate Action Fund being launched at about $90 million. And then, of course, Green Climate Fund. My only discussion with respect to Green Climate Fund is it just takes a long time. We have bureaucracy here in Islamabad, but I do think the bureaucracy in Manila should think through it because we need to fast track a lot of things. So it's my request and humble request that they should look at their accreditation process and even before we come to the pledges and the disbursements. So that's one big source of what we discuss in various COPs. The second one is the discussion with the MDBs, the multilaterals. So we are very grateful to Asian Development Bank. As you know, at the fag end of last year, they announced $500 million, and climate being a big part of that theme. The second one is what was announced earlier in January around the 10-year country partnership framework with the World Bank Group. And I think it's very important, and I'm very grateful to both multilaterals, certainly the World Bank Group as well, because when I met President Ajay Banga almost a year back during the spring meetings, we talked about many things and where we need World Bank support. And of course, all the project and project financings have always been there, but his point was that if Pakistan can come in with a more focused approach, rather than we want this, this, and that. So we agreed. We agreed on the population side, we agreed on the climate side. And of course, the fiscal side of the equation and the private investment side. So if you look at the 10-year country partnership framework, on the population side, we have child stunting, and we have learning poverty, especially girls after school. And the second thing was around climate resiliency and decarbonization. And so I think we have moved forward in the right way on that front. Of course, another source of funds is international capital markets. I heard Justice Mansoor Ali Shah talking about green bonds. And, Pakistan is not strange to green bonds, because it's only a few years back that WABDA, a parastatal on the utility side, printed a ticket of about $500 million in terms of the green bond. And at that point in time, actually,
the book size was 6 times that. That's the kind of appetite which is available if we get our act together in terms of the international capital markets. I'm being told 1 minute left, which is the right thing to do. So then we come to the innovative solutions, which is the development of carbon markets and debt for nature swaps. Again, I heard Justice Mansoor Ali Shah talking about it. But it's very important that we take this whole debt for nature swap out of the distress situations, because we equate it with that someone is in distress and therefore we need to know. It's a very viable option of moving forward in terms of the financial solutions. The other thing we need to think about is grants versus loans, because loans are loans even if they are concessional because we have to pay them. And the other is foreign exchange versus local currency solutions. The last two things I just want to mention is that while we are looking for financing, capacity building in implementation and impact, identification, structuring, monitoring, reporting to international standards in terms of bankable, investable projects. That's what we need. That's where the technical support has to come in. And that's इस्लामाबाद में ब्रीड पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी माहौलियाती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना महमूद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। उनका कहना था मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वज़ारतों को ज़म किया जा रहा है। टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ मईशत को दरपेश अहम चैलेंजेस हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बीजिंग में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सरबराही में हुकूमत सिंध के वफ्द की चीनी कंपनी के हुकाम से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, सेनेटर सलीम मांडवीवाला, बीजिंग में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी और दीगर भी शरीक थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब क्यू येनजन से मुलाकात। और बीजिंग के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीनी हम मनसब के दरमियान मुलाकात 2 घंटे तवील रही। मुलाकात के दौरान पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर्स को महफूज करने के लिए ताउन पर बातचीत हुई। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से गुफ्तगू भी की गई। पुलिस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के चीन से हुसूल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया गया। नेशनल पुलिस अकेडमी के साथ ताउन पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया। जनवरी में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तनाज़ा कश्मीर पर भारत को मुज़ाकरात की दावत। भारत होश के नाखुन ले, कश्मीरियों का लहू बहाने से ये मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब में कहना था कि भारत 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। 5 अगस्त की सोच से निकलना भारत के मफाद में है। भारत तनाज़े कश्मीर पर बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता, ना ही इसे कश्मीरी मानते हैं। भारत कश्मीर में इलाकों की फ़ौज में मज़ीद इजाफा करता जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कश्मीरी आवाम को यकीन दिलाया कि इस जद्दोजहद में पाकिस्तान इनके साथ खड़ा है। कश्मीर की खातिर 10 जंगें और भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा मुजफ्फराबाद में दुश्मन को खुला पैगाम। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का भरपूर दिफा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कश्मीर में तैनात अफसरान और सिपाहियों की गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। अफसरान जवानों के जज्बे और पेशावराना महारत की भी तारीफ की। आर्मी चीफ ने दुश्मन की इश्तिआल अंगेज़ी को रोकने और मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारियों को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि किसी भी जारियत का जवाब दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने कश्मीरी अमायदीन और रिटायर्ड फौजियों के साथ भी मुलाकात की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का अदा किया।
आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान रियासती जबर के खिलाफ हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी बुध को अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शरीक हुए। दुआया नाश्ते की ये तकरीब वाशिंगटन में हुई, जिसमें शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी सुबह 7 बजे तकरीब में पहुंचे थे। ये ब्रेकफास्ट की तकरीब मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1 बजे तक जारी रही। तकरीब में दुनिया भर से अहम शख्सियात को मदऊ किया गया था। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेयर ब्रेकफास्ट में एक ऐसे मौके पर शिरकत की जब उनके वालिद और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने चीन में अपने हम मनसब शी जिनपिंग से ग्रेट हॉल में मुलाकात की और कहा कि हम पहले चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के। इस तरह दो आलमी ताकतों के शहसवारों की तकरीब एक ही वक्त में हुई है। बैठकों में पाकिस्तान के 2 बड़े रहनुमा शरीक हुए हैं और इस तरह बिलावल भुट्टो, जो हुकूमत का हिस्सा नहीं, सिफारती महाज पर पूरी तरह मुतहरिक नजर आए हैं। अमरीका में इस हफ्ते कई नेशनल प्रेयर और फैट तकरीब मुनक्किद हुई हैं, जिनमें अमरीका के सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी विंस शरीक होंगे। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम ने इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई ने जेल से किसी शख्सियत को कोई खत तहरीर नहीं किया। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम ने इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई ने जेल से कोई खत किसी शख्सियत को तहरीर नहीं किया। कोई भी ज़ेर हिरासत मुलजिम या मुजरिम जेल से कोई खत तहरीर करेगा तो उसकी जांच पड़ताल जेल इंतजामिया और सुपरिटेंडेंट करता है। इसी तरह शख्स मज़कूर ने फौज के सरबराह या मुल्क के चीफ जस्टिस को जेल से कोई खत इरसाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसी भी ज़ेर हिरासत शख्स को कोई खत लिखना हो तो वो कलम कागज जेल की इंतजामिया से हासिल करेगा, फिर इस खत को जेल सुपरिटेंडेंट को सौंपेगा, जो जेल रूल्स की दफा 565 के तहत इसे पढ़कर यकीनी बनाकर इसमें इंतशार पसंदी, दहशतगर्दी, अमन आमा और किसी को गज़ंत पहुंचाने का पैगाम नहीं है तो वो इस खत मकतूब अलिया को इरसाल करने की इजाज़त देगा। अपोजिशन इत्तेहाद में पार्टियों के एक दूसरे पर एतराज़ात हैं, ये आपस में कैसे मिल सकते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि नए इंतखाबात की डिमांड होनी है तो पूरे मुल्क के लिए होगी। मामला तसादुम से नहीं, मुज़ाकरात से हल होते हैं। सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। PTI वाले पाकिस्तान की तस्दीक करने की साजिश में शामिल हैं। पाकिस्तान में 25 के करीब इत्तेहाद बने, एक भी ऐसा नहीं जो कामयाब हुआ हो। उन्होंने मजीद कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ हमारे ताल्लुकात में तसलसल होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और पंजाब में तरक्याती काम और आवाम की खिदमत के मंसूबों पर गौर। नवाज शरीफ कहते हैं महंगाई की रफ्तार में कमी आना मौशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी कारोबारी और सरमायाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। तरक्की की तरफ सफर की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की आमद की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामले पर चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जुडिशल कमीशन को 10 एडिशनल जजेस के लिए 49 नामजदगियाँ मौसूल हुई हैं। जजेस तैनाती के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस, 45 सीनियर वकला के नाम पर गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस के नामों पर भी गौर किया जाएगा। कुरम में अमन व अमान के क़याम के लिए बंकर्स गिराने का सिलसिला जारी है। अब अपर कुरम में भी बंकर्स के गिराने का अमल शुरू कर दिया गया। जिला इंतजामिया का बताना है कि अपर कुरम में पेवर और गेदों में 2 बंकर्स गिरा दिए गए, जबकि लोअर कुरम में अब तक 28 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम में बंकर्स की तादाद 250 से ज़ायद है, जहां अब तक 30 बंकर्स गिराए जा चुके। ख्याल रहे कि कुरम में अमन के लिए जरगे के बाद एपेक्स कमेटी इजलास में कुरम में बंकर्स खत्म करने का फैसला किया गया था और ये शक फरीकैन के दरमियान मुआहिदे में भी शामिल की गई। दूसरी जानिब कुरम में खाने पीने की अशया समेत दीगर सामान की तरसील के लिए काफिलों की रवानगी का सिलसिला भी जारी है।
پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر اور ظلم کے خلاف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل کے سربراہ سے ملاقات میں کہا کہ اقوام متحدہ کشمیر میں جاری بھارتی عسکری بربریت کو فوری رکوائے۔ سلامتی کونسل کشمیر پر بھارتی قبضے کے خاتمے میں کردار ادا کرے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تشدد کے ذریعے دبایا جا رہا ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کے سربراہ کو خط حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں متعدد شہریوں نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا۔ کوئٹہ میں 9 افراد نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کیا، جن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 5 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کے مطابق 60 انکاری والدین کو آمادہ کر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوا دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے مزید بتایا کہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوا دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے بتایا کہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہ پلانے والوں کو گرفتار کر کے جیل بھجوایا جائے گا۔ بات کریں گے جرائم کی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں چند گھنٹوں کے دوران تیز رفتار ڈمپروں کی ٹکر سے مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کراچی میں ڈمپر کی ٹکر سے شہریوں کی ہلاکت کا تازہ ترین واقعہ ملیر ہالٹ میں پیش آیا، جہاں ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار کر باپ اور 50 سالہ محمد اور بیٹے 13 سالہ عفان کی جان لے لی ہے، جبکہ ایک خاتون 40 سالہ روبینہ زخمی ہو گئی ہیں۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے باپ اور بیٹے کے ورثاء کا کہنا ہے کہ ان کی فیملی ہجرت کالونی کی رہائشی ہے، جو خدا کی بستی سے موٹر سائیکل پر واپس آ رہی تھی۔ ملیر ہالٹ پل کے قریب حادثہ پیش آیا۔ افسوسناک واقعے میں ایک بچہ اور مرد جاں بحق ہو گئے۔ کراچی میں حادثات کی بڑی وجہ کیا ہے، جانتے ہیں شہریار شوکت کی اس رپورٹ میں۔ اہلیان کراچی اگر چوروں اور اسٹریٹ کرمنل سے بچ بھی جائیں تو روڈ حادثات ان کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ صرف گزشتہ روز ہی 6 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ اس ماہ ملیر نیشنل ہائی وے پر 3 بڑے حادثات پیش آئے، جن میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، 2 بچے زیر علاج ہیں اور ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حادثات کی سب سے بڑی وجہ بے ہنگم ٹریفک اور ہیوی ٹرانسپورٹ کا پورا دن شہر میں چلنا ہے۔ شہر میں چلنے والے 99% موٹر سائیکلوں پر عقب نما شیشے یعنی بیک ویو مرر موجود ہی نہیں۔ شہر میں بڑی تعداد رکشوں کی نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان پر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہو رہا۔ یہ رکشے بھی ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالتے ہیں اور حادثات کی بڑی وجہ بنتے ہیں۔ شہر میں کئی مقامات پر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جو شہریوں بالخصوص موٹر سائیکل سواروں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں۔ شہر میں بغیر ہیلمٹ اور ہیڈ لائٹ کے بھی کئی موٹر سائیکل چلتے نظر آتے ہیں۔ حکومت اور ٹریفک پولیس کو مل کر ان وجوہات کا خاتمہ کرنا ہوگا اور خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد کرنا ہوں گے، بصورت دیگر حالات تبدیل نہ ہوں گے۔ شہریار شوکت، 5 نیوز کراچی۔ کریم آباد انڈر پاس اور شیدیوں کی سہولت کے لیے تعمیر کا آغاز کر دیا گیا، مگر آج یہی منصوبہ شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بن چکا ہے۔ نامکمل کام، جگہ جگہ کھدائی اور سست روی نے عوام کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ دعا غفار سے۔ دعا، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں کریم آباد میں، جہاں قبل کچھ عرصہ پہلے لوگوں کی سہولت کے لیے انڈر پاس بنانا شروع کیا گیا تھا، مگر اب یہی انڈر پاس جو ہے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن چکا ہے۔ اگر میرے کیمرہ مین حمزہ آپ کو دکھا سکے، یہ انڈر پاس جو ہے وہ اسی طرح ہے ابھی تک جس طرح اسے شروع کیا تھا، ابھی تک وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے حمزہ، اس انڈر پاس کے اطراف میں جو ہے وہ کریم آباد مارکیٹ لگتی ہے، جہاں روزانہ لوگ جو ہے وہ
ख़रीदारी करने आते हैं। साथ ही साथ यहाँ से रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं, जिसमें लोग जो है वो दफ्तर जाते हैं, साथ ही साथ जो है बच्चे स्कूल जाते हैं, साथ ही साथ जो इस मार्केट में लोग ख़रीदारी भी करने आते हैं। उनका यही कहना है कि ये अंडरपास जो है वो अब तक नहीं बना, जिनसे उनको यहाँ से गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। इस अंडरपास की अगर बात करें तो इस अंडरपास को 1 साल से ज़ायद हो चुका है, मगर इसको अब भी देखा जाए तो इसका तामीराती काम जो है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। मगर यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन जो देखी जाए तो वो जल्दी नहीं की जा रही। लोगों का यही कहना है कि यहाँ से जो है इस अंडरपास को जल्द से जल्द बनाया जा सके, ताकि लोगों को यहाँ से गुजरने में परेशानी महसूस ना हो, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो उसी तरह से बहाल हो जिस तरह से पहले थी। जी। सिंध में 26 मेडिकल कॉलेजेस, अस्पतालों और सेहत मराकज़ की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ। ये इंकशाफ महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात ने फील्ड मॉनिटरिंग रिपोर्ट में किया है। इन 26 मनसूबों में से 18 मनसूबे रवा माली साल में मुकम्मल होंगे। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नाइज से। जी शकील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जो सिंध में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज और सेहत मराकज के 26 मनसूबों में नाकस मटीरियल का इंकशाफ हुआ है। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात की फील्ड मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, उसने तहलका मचा दिया, जिसके बाद वजीर सेहत ने इस बात का नोटिस लिया। उन्होंने सेक्रेटरी वर्क एंड सर्विसेज से रब्ते करने की हिदायत की है, ताकि चीफ इंजीनियर बिल्डिंग से कहा जाए कि वो इन मनसूबों को ठीक करें। और उन्होंने सेक्रेटरी सेहत को यह भी हिदायत किया कि वो पूरे सूबे में दौरा करें, जहाँ भी ये तरक्याती मनसूबे चल रहे हैं उनका जाके बजाते खुद जाके उसका जायजा लें। जी शकील नाइज, आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह करें। और अभी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि एंटी करप्शन अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार इकबाल डोगर ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान मुद्दई अपने बयान से मुनहरिफ हो गया था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर कौमी ख़जाने से रमज़ान शुगर मिल्स के लिए नाले बनाने का इल्ज़ाम था। नैब कानून में तरमीम के बाद ये रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल हो गया था। आपको बता रहे हैं कि एंटी करप्शन अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज को बरी कर दिया। अहम खबर के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह करें कि एंटी करप्शन अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को बरी कर दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार इकबाल डोगर ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला भी सुना दिया। सिफारत खाने पाकिस्तान वाशिंगटन DC की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें मुमताज़ कानूनी माहिरीन ने तनाज़ा कश्मीर के कलीदी कानूनी, सियासी और सिक्योरिटी पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू की है। सेमिनार में 2 सेशंस पर मबनी प्रोग्राम में सिविल सोसाइटी के अरकान, पाकिस्तानी अमरीकी कम्यूनिटी के नुमाइंदगान, मीडिया नुमाइंदे और वाशिंगटन DC की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा शामिल थे। बैनुल-अक़वामी कानून के माहिरीन अली उनेर, आरिफ हैदर अली, मवाहिद हुसैन शाह, डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी, साबिक सफ़ीर तौकीर हुसैन और नॉर्वे के साबिक MP मिस्टर लॉरेंस राइंस ने इज़हार ख़याल किया। इस मौके पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए, जिसके बाद एक दस्तावेज़ी फ़िल्म भी दिखाई गई, जिसमें भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की जद्दोजहद को दिखाया गया है। ढाका में हजारों मुजाहिरीन ने बांग्लादेश की मफरूर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के आबाई घर को आग लगा दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शेख हसीना वाजिद के सोशल मीडिया पर हामियों से खिताब के ऐलान पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने धमकी दी थी कि अगर शेख हसीना ने तकरीर की तो उनकी खानदानी घर की इमारत को गिरा देंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की तकरीर शुरू होते ही मुजाहिरीन ने ढाका में शेख हसीना के आबाई घर पर धावा बोल दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पहले मफरूर साबिक वज़ीर आज़म के आबाई घर को आग लगाई,
फिर क्रेन से घर गिरा दिया। ढाका में वाक़ई ये घर शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान का था। शेख हसीना ने आबाई घर को म्यूजियम में भी तब्दील कर दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया भर से आने वाले शदीद रद्दअमल के बाद अमरीका की वजाहत सामने आ गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। जब गजा की तामीर नौ हो रही होगी तो वहाँ के लोगों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। उन्होंने कहा कि गजा पर ट्रंप की गई पेशकश की तफसीलात पर अभी काम होना है। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरिद है, इस पर सोचना चाहिए। सदर की पेशकश कोई दुश्मनी इकदाम नहीं। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी वजाहत देते हुए कहा कि सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फौज भेजने का इरादा नहीं। ट्रंप फलस्तीनियों की आरजी मुंतकली चाहते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सुनहरी पेजर का तोहफा दे दिया। ट्रंप ने लेबनान में पेजर धमाकों की तारीफ की। नेतन्याहू ने ट्रंप को पेजर तोहफा दिया जो कि गुज़िश्ता साल लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ होने वाले पेजर धमाकों का हवाला था। इसराइली चैनल 12 के मुताबिक अमरीकी सदर ने तोहफे पर रद्दअमल देते हुए पेजर धमाकों की तारीफ की और कहा कि वो बेहतरीन ऑपरेशन था। बदले में ट्रंप ने नेतन्याहू को उनके इस दौरे की तस्वीर दी जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू मौजूद हैं। तस्वीर के इंतसाब में दर्ज है एक अजीम रहनुमा नेतन्याहू के लिए। ख्याल रहे कि 17 सितंबर 2014 को लेबनान में सैकड़ों की तादाद में पेजर्स धमाके हुए जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक और हजारों जख्मी हो गए थे। इन धमाकों के अगले हीरोज लेबनान में कई वॉकी टॉकी सेट्स और मोबाइल फोन्स में धमाके हुए जिनके नतीजे में मजीद 25 अफराद हलाक और 608 अफराद जख्मी हुए। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इन धमाकों का इल्ज़ाम इजराइल पर आयद किया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।